اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ، سب سے پہلے تو بات شروع کرنے سے پہلے دو تین گزارشات ہیں۔ ایک تو بڑی مبارکباد دوں گا آپ کو، بڑا عرصہ ہوا، بڑے عرصے کے بعد کسی مسجد میں نماز پڑھنے پہ کیفیت محسوس ہوئی۔ سبحان اللہ۔ یقین جانیے، آپ نے جب ہم سے کہا کہ جب آپ کرائیں اللہ اکبر، تو سچ تو یہ ہے کہ اٹھنا مشکل تھا۔ ایسی کیفیت بہت کم کہیں کہیں نصیب ہوئی ہمیں۔ انشاءاللہ، اور یقین جانیے کہ قیام، پہلے قیام کے بعد باقی تینوں قیام میں کھڑے ہوتے ہوتے کیفیت کا یہ عالم تھا کہ لگتا تھا کہ گر جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ اللہ کے دیے بزم توفیق سے، آپ دوستوں کی رضامندی سے، اگر اللہ نے چاہا تو مہینے میں ایک آدھ بار آپ کے پاس صرف نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوں گے۔ کیا بات ہے جی، لیکن نماز بھی فجر کی پڑھنے آئیں گے۔ اگر ظہر میں یہ عالم ہے، نہ جانے فجر میں کیا عالم ہوگا۔ دوسری ایک گزارش آپ دوستوں سے ہے، نعت خواں حضرات سے۔ ماشاءاللہ کافی سارے نعت خواں حضرات یہاں موجود ہیں۔ بڑی پرزور آپ سے یہ درخواست ہے، التماس ہے، آج محفل کے بعد اکٹھے ہو کر ایک کام کریں۔ جو درود شریف آپ پڑھتے ہیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، ہماری درخواست ہے اس کو بدل دیں۔ آپ کی بات عجیب لگے گی، ذرا پوری سن لیں پہلے۔ یہ نہ پڑھیں، آپ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ، سلام، آل، اصحاب، کیا بات ہے، چار الفاظ آپ شامل کریں۔ آپ حضرات ماشاءاللہ نعت خواں حضرات ہیں، بڑی بڑی اعلیٰ طرز بنا سکتے ہیں۔ اکٹھے ہونے کو اس لیے کہا کہ ایک طرز، جیسے اس کی ایک طرز ہے آپ کی صلی اللہ علیہ، ایک طرز سارے ملک، کیا ملک سے باہر بھی جب نعت پہ پڑھی جاتی ہے تو ایک ہی طرز پڑھی جاتی ہے۔ آئیے آج اس کو بدلیں، ایک نئی طرز بنائیں اور پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بڑا پرزور درخواست ہے کہ یہ کام کریں۔ ایک اور التماس، نعت خواں حضرات، قرہ حضرات، علماء حضرات، مفتی حضرات، بزرگان دین، جب بھی آپ کسی کا تعارف کراتے ہیں، میری درخواست ہے اپنے الفاظ بدل دیں۔ آپ کو آج ہماری باتیں بڑی عجیب شروع میں لگیں گی، پوری بات سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اپنے الفاظ بدل، گو کہ سجاد قریشی صاحب نے، علامہ صاحب نے خاص طور پہ کہا تھا کہ چونکہ محرم الحرام ہے تو خاص طور پہ کربلا کے حوالے سے بات کریں، لیکن ہمارے ساتھ ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ مفتی صاحب بھی اس بات کو جانتے ہیں، قاضی صاحب بھی اس بات سے واقف ہیں۔ جب ہم آ رہے ہوتے ہیں، راستے کے معاملات کو دیکھتے دیکھتے بس کچھ مزاج بدل جاتا ہے اور پھر ہم ایک نئی ڈگر پہ چل پڑتے ہیں، ایک علیحدگی گفتگو کرتے ہیں۔ اس لیے سجاد قریشی صاحب سے معذرت کے ساتھ کہ آپ کی درخواست سے تھوڑا ہم ہٹ رہے ہیں۔
हुसैनियत क्या है। कभी हमने ये गौर किया है कि हुसैन यजीद के आगे क्यों खड़े हुए थे। 5 नुक्ते हैं जिसकी वजह से वो खड़े हुए थे। उलमा से दरखास्त है वो नुक्ते बयान किया करें। और मसला ये है कि उनमें से 2 नुकात ऐसे हैं जो हमारे मुआशरे में अब आम हो गए हैं और अवाम की सत्ता पे आम हो गए। वो जो अल्फाज बदलने को हम कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं जरा समझिए। हुसैनियत क्या है। ये जो दुनियादार लोग होते हैं, जैसे आप पार्लियामेंट की बातें करते हैं और आप सेनेट की बातें करते हैं और फलां हुकूमती इदारे की बात करते हैं, हुसैनियत क्या है। हुसैनियत इन लोगों के आका की आका है। वाह वाह वाह। इनकी आका नहीं है, इनकी आका की आका है। ये जो दारुल दुनिया है, ये दारुल दुनिया के आका है उनके नफ्स, और इन नफ्स की आका है हुसैनियत। हुसैनियत अपने नफ्स को ताबे करने का नाम है। हुसैनियत अपनी रूह को और अपने कल्ब को अपने नफ्स का आका बनाने का नाम है। हमारे नात खां हजरात अगर पार्लियामेंट में नात पढ़ते हैं, ये उनके लिए कोई सादत नहीं है, ये उस पार्लियामेंट के लिए सादत है कि वहां कोई नात पढ़ता है। बेशक आपका ये मतलब नहीं होगा इन अल्फाज का, आपका शायद यही मतलब होगा, लेकिन आपके अल्फाज ऐसे हैं कि जो इससे दूसरा मतलब ले सकता है कि जी ये नात खां है, शायद बड़ी बात है कि ये सदर वहां पे जाके नात पढ़ता है। ये दारुल दुनिया जो है, इन लोगों का मुकाम बहुत बुलंद था। हमारे बुजुर्गान दीन का मुकाम बुलंद था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह करने वालों का मुकाम बुलंद था। हमने इसको इतना नीचे क्यों कर दिया। हुसैनियत क्या है। हजरत अबू इसहाक चिश्ती शामी रहमतुल्लाह अलैह, आज आप में से हर कोई लफ्ज चिश्ती से वाकिफ है। खानवादा चिश्तिया मंसूब है हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह से, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। जो साहिब इल्म हजरात यहाँ मौजूद हैं वो वाकिफ हैं कि खानवादा चिश्तिया के जो बानी हैं वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह नहीं है, ख्वाजा अबू इसहाक चिश्ती शामी रहमतुल्लाह अलैह। इनको इनके शेख ने चिश्त शरीफ में जिम्मेदार बनाकर भेजा था और कहा था कि आज के बाद तुमसे आगे चलने वाले चिश्ती कहलाएंगे। उस वक्त का जो सुल्तान था, जो खलीफा कहलाता था, हम तो खुलफाए राशिदीन के बाद किसी को खलीफा नहीं मानते। ये सब सलातीन है, ये सब मुल्कियत है। हाँ, इनमें से चंद लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने वक्त में हुकूमत इस तरह से की कि खिलाफत राशिदा की याद ताज़ा की, तो उनको मजाजन अगर हम खलीफा राशिद कह दे तो हमें कोई एतराज नहीं। हम इनको खलीफा नहीं मानते, लेकिन चूंकि मशहूर खलीफा है, ख्वाजा अबू इसहाक चिश्ती शामी रहमतुल्लाह अलैह के पास खलीफा वक्त 3 दफा मुलाकात के लिए आए। तीसरी दफा जब उसकी शक्ल देखी तो ख्वाजा धाड़े मार के रोने लगे। खलीफा ने कहा कि आप क्यों रोते हैं। उन्होंने कहा मुझे लगता है मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, आज तीसरा मुसलसल दिन है तेरी सूरत देखने को मिलती। ये है हुसैनियत, ये है हुसैनियत कि खलीफा वक्त जो है वो हमारे गुलामों का गुलाम होना चाहिए। हमारे लिए उनके साथ ताल्लुक रखना कोई काबिल फख्र बात नहीं है, उनका हमारे साथ ताल्लुक रखना काबिल फख्र होना चाहिए। ये लोग हमारे बुजुर्गों के पास हाथ जोड़ते, उनको घुटनों को छूते और उनके पांव को छूने के लिए आया करते थे। ये लोग आते थे। आज हम क्यों उनके पांव छूने लग गए। क्यों हमने अपने बुजुर्गों की तालीमात जो है वो भुला दी है।
क्यों हमारे अंदर वो नफ्स को बादशाह बनाने, नफ्स का बादशाह बनने की हमें वो क्यों नहीं एक वो हिम्मत रही, हौसला था? अब वो जो 5 नुक्ते हैं जिसकी वजह से हुसैन खड़े हुए, उसमें से 2 नुक्ते हमने कहा आज हमारे मुआशरे में बिल्कुल आम है और आवाम की सतह पर। पहला नुक्ता क्या था? यजीद शराब नोशी करता है। आज जमाना थोड़ा बदल गया है, शराब नोशी की बजाय और ड्रग्स आ गई हैं, फला नशा फला नशा फला नशा। वो अजीब अजीब नाम है, हम तो नाम सुन के हैरान होते हैं। बचपन में कभी सुना था एक चर्स होती है, आपको पता नहीं 50 और नाम आ गए हैं। वो एक हेरोइन होती है और पता नहीं क्या क्या होता है। हमारे स्कूल में बच्चों को लत लग गई है। दीन में जब शराब हराम कही गई तो इसका मतलब नहीं है कि सिर्फ शराब हराम है, इसका मतलब है शराब जैसी कैफियत की हर चीज हराम है। कोई ये नहीं कह सकता कि जो शराब को हराम कहा गया, चर्च को तो कोई हराम नहीं कहा गया, अस्तगफिरुल्लाह। ऐसा नहीं है। दीन हमें एक उसूल देता है, उस उसूल की बुनियाद पे नए जमाने में जब नई चीज आती है तो उसके मुताबिक हमारे फुकाहा बैठते हैं और अपना फैसला देते हैं। दूसरा जो इल्जाम था जिसकी वजह से हुसैन खड़े हुए, बाकी 3 हमने कहा ना कि वो आज के जमाने पे नहीं, इसलिए वो कोई इतना मसला नहीं है। वो कहते थे कि यजीद गाने वालियों से गाना सुनता है। वो हमारे यहां तो गाने वाले और गाने वालियां सेलिब्रिटीज हो गए हैं जी, फनकार हो गए हैं। जिस काम के लिए यजीद के मुखालफत में हुसैन खड़े हो गए, वो काम हमारे घरों में हो रहा है। हाँ, हम ये जरूर मानते हैं कि कई बार आपके बस में नहीं होता। सारी उम्र एक और तरह अंदाज में गुजरी, अब अल्लाह ने तौफीक दी, बात समझ में आ गई। अब जब आपने मामलात को संभालने की कोशिश की तो बात आपके हाथ में नहीं। हम ये बात समझते हैं। आप किसी तकरीब में कहते हैं कि जनाब हमने ये काम नहीं करना, बच्चे उठ के खड़े हो जाते हैं, अब्बा जी केड़े जमाने दियां गल्लां करते हो, आजकल जमाना कोई हो रे। ऐसे फनकार लोकी ने यही सुनते हैं ना। आधी बरादरी खड़ी हो जाती है, साड़ी नक वड्डी जाएगी। वैसे तो चंगा नक वड्डी जाए तो बेहतर है, एहो जी नक ना ही होए तो चंगी गल। बट चलो कोई गल, अगर आपके बस में नहीं है तो इतना तो है कि वक्तन फवक्तन कहते जरूर रहे कि ये काम गलत हो रहा है। हम हाथ पकड़ के अगर कहीं पे रोकने की सलाहियत नहीं रखते तो जुबान से तो कह सकते हैं, और जुबान से नहीं कह सकते तो दिल से तो बुरा जान सकते हैं, और उस मामले में शिरकत से तो पीछे हट सकते हैं। हमें याद है जब अल्लाह ताला ने तौफीक दी, हमें मामलात समझाने शुरू फरमाए, उसका करम होता है, सीधी सी बात। ना हो तो मर खप जाता बंदा, हिदायत नसीब नहीं होती। तो हमारे खानदान में जब शादी ब्याह होती थी तो सिवाय निकाह के और वलीमे में हम जाते ही नहीं थे। बड़ियां गल्ला हुई, पता नहीं की समझदा अपने आप को बहुत बड़ा पीर हो गया। यही होगा ना जी, ऐसी बातें होती हैं तो ठीक है। हमारे लिए अल्लाह रसूल की खुशनुदी की ज्यादा अहमियत है या बरादरी की अहमियत ज्यादा है? पहले ये आप फैसला कर लें। क्या मैसेज है पीर साहब, वाह जी वाह। ये फैसला करें आप, क्या मैसेज है जी, वाह जी वाह। रोजे कयामत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाएंगे? अल्लाह। हाँ, जहां बहुत मजबूरी हमारे बस में नहीं है, आप शामिल ना हो, पर ठीक है साइड पे बैठे हुए बैठे। हम समझते हैं कि कुछ जगह ऐसी होती है कि आपके बस में नहीं होता, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन कम से कम लोगों को पता जरूर होना चाहिए कि भाईजान ये जो बंदा है ना, ये बंदा इन चीजों को पसंद नहीं करता, मजबूरन आके बैठ गया, बस ठीक है। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना कब्र में भी है, किस मुंह से होगा? रोज़े क़यामत भी है, किस मुंह से होगा? और एक बात और अर्ज कर दें
बड़े बहुत ज्यादा इख्तिलाफ राय करते हैं अपने अजीजों से माजरत के साथ। आप यहाँ अब्बासी साहब के मेहमान नहीं हैं, ना अहले इलाका के मेहमान हैं, हम आप अल्लाह रसूल के मेहमान हैं, अहले बैत के मेहमान हैं। इनको तो अल्लाह ताला ने वसीला और जरिया और सबब बनाया, और जाहिर है कि इसका सवाब इनको मिलेगा, इंशाअल्लाह जरूर मिलेगा, हमारा ईमान है इस बात पे। तो अब आप ये सोचिए कि अगर किसी जगह पे हम अल्लाह रसूल के मेहमान बनकर आए और हमने कोई अल्लाह रसूल की बात सुनी, तो क्या इस दरवाजे से बाहर निकलते ही वो अल्लाह रसूल की बात जो हमने सुनी वो खत्म हो जाएगी? अगर खत्म हो गई तो रोज़े क़यामत उसको क्या मुंह दिखाएगा? यजीद पे इस सारी गुफ्तगू के बाद अल्लामा सज्जाद साहब की दरखास्त को भी चले थोड़ा सा, एक बात ज़हन में रखिए कि ये जो मामला है ये सिर्फ एक 9-10 मुहर्रम का मामला नहीं, ये भी गलत फहमी आप दूर कर दें। करबला सिर्फ 9-10 मुहर्रम नहीं है। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का शहीद होना, उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का शहीद होना, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का शहीद होना, हसन रज़ी अल्लाह अन्हु का शहीद होना, हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का शहीद होना, ये सब करबला है। और हुसैन की शहादत के बाद मदीना की तबाही यजीद के लश्करियों के हाथों, पता नहीं कितने लोगों को पता है, मदीना को तबाह बर्बाद किया। मदीना मुनव्वरा में खवातीन की अस्मत दरी की गई, वो भी करबला है। और उसके बाद मक्का पे हमला हुआ, खाना काबा पे पत्थर बरसाए गए, वो भी करबला है। करबला 9-10 को खत्म नहीं हो जाती। जिस यजीद को कुछ लोग जन्नती साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं और एक हदीस कुस्तुनतुनिया पेश करते हैं, सबसे पहले तो हदीस कुस्तुनतुनिया जिसमें कुस्तुनतुनिया का लफ्ज आया है वो सिर्फ एक है, जिसमें कुस्तुनतुनिया फतह होने की बात है, हमला करने की बात नहीं है। हाँ, जिसको वो हदीस कुस्तुनतुनिया कहते हैं, उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लश्कर कैसर के शहर पर हमला करेगा, और ये लोग कहते हैं कि पहला लश्कर, ये कहते हैं कि जी कैसर का शहर कुस्तुनतुनिया है और पहला हमला यजीद ने किया था। दोनों बातें झूठ हैं। आज नोट कर लें हमारी बात। कहेंगे तो आपको पूरा इस पे हमारी पिछली 3 जुमों की गुफ्तगू है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर किसी को ख्वाहिश हो तो अल्लामा साहब से दरखास्त करें, वो आपको लिंक दे देंगे, यूट्यूब पे है पड़े गए। पहले में हमने करबला के इसी हवाले से बात की, दूसरे में हमने मदीना की तबाही की बात की, तीसरे में हमने मक्का की तबाही की बात की। अगर तफसीली गुफ्तगू चाहे तो आप उनसे ले लीजिएगा, अल्लामा सज्जाद कुरैशी साहब से, अवान साहब से, और भी लोग हैं उनसे। अब यहां पर यजीद ने अब सबसे पहले तो ये समझ लें कि कैसर का शहर, जब यह हदीस मुबारक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से अदा हुई, कुस्तुनतुनिया नहीं था, हिम्स था। लेकिन फिर भी वो बाद में हिम्स उसने छोड़ा, कुस्तुनतुनिया शिफ्ट कर गया। चले मान लेते हैं कुस्तुनतुनिया था। यजीद चौथे हमले में था, पहले में नहीं था। पहला हमला जब हुआ था यजीद तो पैदा भी नहीं हुआ था। हमारे लिए बड़ा जरूरी है, मैं अपने उलमाए कराम बेतहाशा माशाल्लाह यहाँ मौजूद है, मुफ्ती हजरात मौजूद हैं, हमारे कई खानकाहों के हमारे भाई यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे दरखास्त करूंगा हमारे मुहद्दिसीन की चीजें निकालें, उसके सबूत मौजूद हैं, इसनाद मौजूद हैं। इन लोगों के बखिए भी उधेड़ सकते हैं आप, इनके पर खच्चे उड़ा सकते हैं, इनके जो दावे हैं उसके, दलीलों से नहीं, सबूतों से। दलील का जवाब दलील से दिया जा सकता है, सबूत का जवाब दलील से नहीं दिया जा सकता। या तो आपको खड़े होकर कहना पड़ेगा बुखारी गलत है, मुस्लिम गलत है, इमाम अहमद गलत है, वो कहने की जरूरत नहीं होगी इंशाअल्लाह। जब आप कहेंगे देखो अहमद ने लिखा है और सही सनद के साथ लिखा है,
उलमा हज़रात ये बात समझ रहे हैं सनद क्या चीज है और ये क्या चीज है। 3 साढ़े 3 साल उसने हुकूमत की, इन 3 साढ़े 3 साल में उसने 3 कुफ्र किए, हम इसको कुफ्र समझते हैं। पहला अहले बैत का जो जुल्म हुआ करबला के मैदान के अंदर 70-72 साथी इमाम आली मुकाम के साथ, ये कहते हैं जी वो बगावत थी और बगावत कुचलने आए थे। उलमा हमारे बैठे हैं वो समझते हैं बगावत की तफसील जो शरीयत ने बयान की है वो उस पर पूरी नहीं उतरती, वो बगावत नहीं थी, झूठ बोलते हैं ये लोग। और ये कौन सी बगावत थी जो अपने खानदान की खवातीन और बच्चों के साथ हो रही थी? शर्म आनी चाहिए ये बात कहते हैं। दूसरा कुफ्र उसने मदीना को बर्बाद किया। 3 दिन 3 रात यजीद ने कहा कि मदीना मुबाह है, जो चाहो करो वहां। कई सहाबा शहीद किए गए, कई ताबईन शहीद किए गए, औरतें बच्चे मारे गए, औरतों के साथ ज्यादती की गई। 3 दिन 3 रात रियाजुल जन्ना में घोड़े बंधे रहे। 3 दिन 3 रात घोड़ा बंधा रहेगा, पेशाब और गोबर भी नहीं करेगा। और ये कहते हैं कि जनाब बगावत कुचलने गए थे। बगावत भी अगर कुचलने गए थे तो मदीना मुनव्वरा तो बड़ी आसानी से फतह हो गया था, बात खत्म हो गई थी। इतना जुल्म करने का क्या मकसद था? वो भी उस शहर पे जिसके बारे में सही हदीस में आया है, और एक से ज्यादा इसके साथ तुरुक के साथ ये हदीस मौजूद है। ये फिर हमारे उलमा समझते हैं एक से ज्यादा तुरुक का क्या मतलब है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मफहूम अर्ज करते हैं, उन्होंने कहा कि या अल्लाह जो मदीना वालों को डराए तो उसको डरा, और उसका कोई फर्ज कबूल ना हो, उसका कोई नफल कबूल ना हो। और हम कहते हैं कि जी ये तो बगावत को चलने आए थे। और फिर मक्का पे हमला करवाया गया, और मक्का पे खाना काबा पे संगबारी हुई, पत्थर बरसाए गए। और ना सिर्फ ये पत्थर बरसाए गए बल्कि पत्थर बरसाए जब जा रहे थे साथ साथ ये लोग रज्जिया अशार पढ़ रहे थे, जैसे जिहादी नगमे होते हैं। हमारे मौर्रखीन, हमारे मुहद्दिसीन किताबें उठा के देखो, उन्होंने वो अशार वहां लिखे हुए हैं, उनका तर्जुमा पढ़े कि क्या वो पढ़ रहे थे उस वक्त। अपने उस पत्थर फेंकने वाली मंजनीक, उसको हम उर्दू में कहते हैं, वो आपने शायद कभी किसी जगह देखा हो कि वो एक पूरा इस तरीके से एक डंडा सा होता है जिसके ऊपर पत्थर रखा जाता है और पत्थर फेंकते हैं। उसके नाम रखे हुए थे उन्होंने, और कहते थे देखो क्या जबरदस्त काम कर रही है, और काबा के ऊपर पत्थर बरसा रही है। लफ्ज काबा उस शहर के अंदर मौजूद है। 3 कुफ्र किए हैं उसने। हमने पिछली जो जुमा की गुफ्तगू थी उसमें ये बात अर्ज की थी कि फिर भी आप उसको जन्नती बनाना चाहते हैं, बनाइए, हमें कोई लेना देना नहीं। ना हमें आपसे बहस करनी है, ना हमसे लड़ाई करनी है, ना हमने आपका गिरबान पकड़ना, हम सिर्फ एक जुमला जानते हैं, अल्लाह आपका हशर यजीद के साथ करे, हमारा हशर हुसैन। नाराए तकबीर। लेकिन हुसैन के साथ हशर करवाने के लिए सिर्फ हुसैन का नारा लगाना काफी नहीं है। हुसैन की याद में सिर्फ महफिलें करना काफी नहीं है। महफिल करनी है, इनकार नहीं है, करनी है, लेकिन ये काफी नहीं। हम एक बात कहते हैं, एक गुरु ने हुसैन के नाम की महफिलें करा ली, हलीमे बना के बांट दी और समझा कि बस ठीक है, फर्ज पूरा हो गया। दूसरे ने पीट के समझ लिया कि फर्ज पूरा हो गया। दोनों में से किसी ने कभी कोशिश की कि हुसैनियत इख्तियार भी करे? हुसैन को क्या मुंह दिखाएंगे? और हमारे तो हाल ये है, मुमकिन आप में से बहुत से लोगों को पता भी ना हो, पहली 2 ये जो खानदान है खिलाफतें, आइम्माए अहले बैत 12 के 12 शहीद किए गए। कोई एक उनमें से नहीं है जो असल कुदरती उन्होंने उनको मौत हासिल हुई, एक भी नहीं है। अली से शुरू हो जाए,
अली, हसन, हुसैन, ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकर, इमाम जाफर, इमाम अस्करी, आप इमाम मोहम्मद अल महदी, किसी को ले लें, 12 के 12 अइम्मा अहले बैत सबके सब शहीद किए गए। कोई एक ऐसा नहीं है कि जिसको, हाँ इमाम मोहम्मद अल महदी के बारे में सिर्फ हम में और अहले तशी हजरात में इख्तलाफ है। हम कहते हैं कि वो शहीद हो गए, वो कहते हैं कि नहीं जी वो अभी जिंदा है, वो किसी गार में है, वो इमाम गायब हैं और इमाम कायम है। ठीक है, उनका अकीदा हमारी उससे गुजारिश नहीं है, लेकिन 12 के 12 इम्मा हमने शहीद किए हैं। हमने उन लोगों ने जो खुद को मुसलमान कहते थे, वो लोग जो नमाजें पढ़ते थे, वो लोग जो मस्जिदें बनाते थे, वो लोग जो तबलीगी कारनामों को बाकायदा उसकी फंडिंग करते थे, पैसे देते थे, उन लोगों ने किया है। देखना ये है कि हम हुसैनियत इख्तियार कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बड़ी अच्छी बात शुरू में किसी ने की थी, गालिबन अब्बासी साहब के हवाले से कही थी या किसके हवाले से कही थी कि अमल से पहले एक नीयत होती है। और ये दीन तो ऐसा खूबसूरत दीन है कि आप नीयत कर लेते हैं तो सवाब शुरू हो जाता है। गुनाह का इरादा करते हैं तो गुनाह का अजाब नहीं शुरू होता, वो उस वक्त शुरू होता है जब गुनाह करते हैं। लेकिन अच्छे काम की जब इरादा नीयत करते हैं, सवाब मिलना शुरू हो जाता है। अब किसी वजह से आप नहीं कर सके, वो अलग बात, जब करेंगे तो सवाब बेबहा हो जाए। आज यहाँ हमें शौक नहीं है अपने कुछ अजीजों भाइयों की तरह एलानिया इरादे कराने का, लेकिन अपने दिल में अपने आप से इरादा करें, नीयत करें, हम हुसैनियत इख्तियार करने की खुलूस के साथ कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे। और वो कैसे होगी? सबसे पहली चीज, वो असबाब, जिन असबाब की वजह से हुसैन खड़े हुए थे, उससे खुद को भी बचाएं, अपनी नस्ल को भी बचाएं। अगर आपका माहौल और आपका बरादरी सिस्टम और आपका खानदान का सिस्टम ऐसा हो गया कि आपसे वो नहीं हो पाता, तो आप अपने आगे बच्चों में तो कम से कम करें। हम समझते हैं मसला खड़ा हो जाता है, और कम से कम कुछ हल्का हल्का बोलना तो शुरू करें, ये गलत है, गलत है, गलत है। शायद आपने 50 लोगों को कहा, उसमें से कोई एक उसको समझ में आ जाए। हमारा तो ईमान ये है कि हमारी किसी बात से किसी एक को समझ आ जाए तो शायद हमारी मग़फ़िरत ही हो जाए। उसकी वजह क्या है? बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, हम नाम अक्सर भूल जाते हैं, माज़रत के साथ, वक्त ज्यादा तो नहीं ले रहे। वो वफात हो गई उनकी, तो उनके एक शागिर्द ने ख्वाब में उनको देखा, उन्होंने कहा हुजूर क्या मामला हुआ? उन्होंने कहा जी बख्शिश हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कहा जी आपकी बख्शिश होनी थी, आप आलिम दीन, आप मुहद्दिस, आप हदीस सीखते हैं, पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मेरी बख्शिश इस पर नहीं हुई है। ठीक है, ये ख्वाब की बात है, लेकिन हम लोग बुजुर्गों के ख्वाब को तस्लीम करते हैं, ठीक है, उसको हुज्जत नहीं बनाते, लेकिन समझने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो वो आगे से जवाब ये मिला कि एक दफा मैंने, उस जमाने में कलम होते थे जो डुबोकर स्याही में लिखते हैं, आज की तरह के फाउंटेन पेन या बॉल पॉइंट तो होते नहीं थे, ना पेंसिलें होती थी। तो कहते मैंने स्याही में उसे डुबोया और लिखने लगा, तो उसके ऊपर स्याही का एक बुलबुला आ गया। एक मक्खी आके उस बुलबुले पर बैठी और उस बुलबुले को चूसने लगी। तो मैंने सोचा शायद प्यासी है। मैंने सोचा कि अगर मैंने लिखना शुरू किया तो शायद आधी प्यास वो उड़ ना जाए। मैंने अपना हाथ वहीं पे जमा किया, उसे जितनी देर चूसना था वो चूसती रही। फिर जब वो उड़ गई, तब मैंने उस कलम से लिखा, मेरे अल्लाह ने उस मक्खी की प्यास बुझाने पे मुझे बख्शा। क्या बात है। हमारे एक चीज ज़हन में रखें, कुछ नादान दोस्त, देखिए हर डोमेन में हर किस्म के लोग होते हैं। हमारे उलमा में बड़े बड़े काबिल फख्र लोग भी लोग हैं, लेकिन कुछ नादान लोग भी हैं। हर जगह होता है, इसमें कोई ऐसी शर्मिंदगी की बात नहीं है, हर पेशे में है। अब वो जब हम बात करते हैं कि अल्लाह ने हमें अपने फजल से ही
معاف کرنا ہے تو ہم کبھی کبھی اس بات کو اتنا بڑھا کے بیان کرتے ہیں کہ اگلا کہتا ہے بس پھر کم کرن دی کی لوڑ ہے، چھوٹو نماز، اللہ کا فضل نہیں ہوگا تو جنیا مرضیاں نمازیں پڑھ لو. لیکن یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ بات درست ہے کہ اللہ کے فضل پہ بخشش ہونی ہے، ہمارے عمل پہ نہیں ہونی ہے، لیکن یہ تو سوچ لو کہ اللہ کا فضل ہمارے کس عمل کے نتیجے میں اترے گا، اس کا کیا کرو گے؟ اگر ہمارے پاس عمل بالکل ہی نہیں ہوگا تو فضل کس بات پہ آئے گا؟ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اس کو آپ سمجھیں. حسینیت کیا ہے اس کو سمجھیں اور حسینیت کو اختیار کرنے کی کوشش کریں. ہم سے کوتاہی ہو جائے کوئی بات نہیں ہے، اللہ غفور و رحیم ہے، غفار ہے، ستار ہے، کریم ہے، معاف کر دے گا اگر ہم اس کے آگے جھک جائیں گے. شیطان کو معافی کیوں نہیں ملی؟ اس لیے کہ وہ اپنی برائی پہ اڑ گیا تھا. اگر اڑتا نہ تو شاید اللہ غفار، وہ اپنی بات پہ اڑ گیا نہ، یہ تکبر ہوتا اور تکبر سوائے اللہ کے کسی کو زیبا نہیں ہے. ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے. ایک آخری بات عرض کروں، ایک کام جو روزانہ اللہ کے دیے اس میں توفیق سے اور آپ دوستوں کی نیک تمناؤں سے اور دعاؤں سے ہم کرتے ہیں روزانہ بلا ناغہ، اور ہم آپ سے درخواست کریں کہ آپ یہ کام کرنا شروع کرتے ہیں. ہمارا تجربہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حسینیت کے راستے پہ چڑھا دے. سبحان اللہ. ہم نے اس کے لیے مغرب کا وقت طے کیا ہے، آپ کوئی وقت لے لیں. ہم مغرب کی نماز کے بعد اللہ سے دعا یہ کرتے ہیں کہ یا اللہ کل کی مغرب کی نماز سے لے کے گزشتہ کل کی آج کی مغرب کی نماز تک ہر وہ کام جو ہم نے کیا ہے